Hello and welcome to For All Prep. So in this video, we will be taking a look at 2008 CAT RC. So let's begin. So it's written that when I was a little children, we bought two ice creams. Okay, two kinds of ice cream. Ice cream is of two kinds. Like I sold those from the white wagons with canopy. The canopy is like a wagon एक है, and something over on top of it. Okay, canopy is like a banner type. It's a banner here. Okay, wagon with a banner. Okay, made up of silvery metal. It is was made up of silvery metal. Then either the ice cream was of 2 cent cone, 2 cent cone, or was of the 4 cent ice cream pie. Okay, the 2 cent cone was very small. In fact, in fact, it could fit comfortably into the child hand. Was it was very small, and it was made by taking the ice cream from its container है कोई उसमें से निकालने with a special scoop and piling it on the cone like ये this is a cone and this is like ice cream. So this basically is a scoop. This is a basically a scoop. Second, next it is written that granny means like a grandmother always suggested that I eat only a part of the cone and throw away the pointed end. मतलब इसको ये फेंकने के लिए डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहे हैं डिस्कार्ड और थ्रो अवे बिकॉज इट हैड बीन जस्ट बाय द वेंडर्स हैंड. अब पकड़ना है तो कम से कम ये इतना हिस्सा आ जा रहा है तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए बोल रहे हैं एंड बिकॉज इट हैड बीन जस्ट बाय द वेंडर्स हैंड दो दैट वाज द बेस्ट पार्ट because best part क्यों है author के हिसाब से because it was nice and crunchy and it was regularly eaten in secret after a pretense of discarding it. मतलब वो pretend कर रहा है कि discard कर दे रहा पर he used to like it to eat because of it being nice and crunchy. Next it is about the 4 cent pie, 4 cent ice cream pie. 4 cent means like in a dollar we have $1, we have 100 cents. So out of 100 cents, it was a 4 cent. The 4 cent pie was made up of a special little machine. So it was machine made. You can say machine made. Also silvery, which pressed two discs of the sweet biscuit against the cylindrical section of the ice cream. कुछ प्रोसेस दे रखा है ऐसे बनी है like first you have to thrust your tongue into the gap between thrust means insert or put your tongue into the gap between the biscuits until it touches the central nucleus of the ice cream. Okay, so then gradually you eat the whole thing. Okay, ऐसे कुछ मशीन मेड है थोड़ी स्पेशल है स्पेशल. ओके, सो स्वीट बिस्किट्स हैं दो साइड में सिलेंड्रिकल आइसक्रीम है दो बिस्किट टाइप है इधर उधर. ओके, और उसमें कुछ हाउ टू ईट इट हाउ ऑथर यूज्ड टू ईट उसका तरीका बोल रखा है. लिखा ग्रैनी हैड नो एडवाइस टू गिव हियर. लिखा then they gradually we missed this part then gradually you eat the whole thing the biscuit softens as it becomes soaked in the creamy nectar. So basically ये soft हो जा रहा है ये biscuits soft हो जा रहे हैं after being dipped in the creamy nectar. So Granny had no advice to give here. In theory, the pies has been touched only by the machine. In practice, the vendor had held them in his hand while giving us to them, but it is impossible to isolate the contaminated area. अब ये वेंडर ने इन दोनों को भी इसको पकड़ रखा है इधर से पकड़ इसको पकड़ रखा है पर his grandmother you not do not give any advice on how to eat this kind of 4 cent ice cream. So next it is mentioned that ये बोल रखा है कि I was fascinated okay excited कह सकते हैं however by some of her peers whose parents bought them a 4 cent pie who sent मतलब उसके parents whose parents peers means friends मान सकते हैं peers whose parents उनके जो parents हैं bought them not a 4 cent pie a 4 cent वाला नहीं आइसक्रीम दिला रहे but they used to give them 2 cent टू कोन्स 2 cent वाले दो ले लिए ठीक है. तो सेम प्राइस पड़ा 4 cent इधर भी है 4 cent इधर भी है पर ये नहीं ले रहे ये ले रहे. अब क्यों ले रहे उसका रीजन यहाँ बता रखा है दीज प्रिविलेज चिल्ड्रन ये बोल रखा है दीज प्रिविलेज मीन्स सम एडेड. ओके, सो एडेड एक्स्ट्रावेगेंस है उनके पास. सो व्हाई ही फेल्ट दैट children advanced
proudly with one cone in his right hand. भी एक ये दो कोन है, एक पकड़ रखा है राइट हैंड में, एक पकड़ रखा है लेफ्ट हैंड में, and and expertly moved their head from left to right, side to side, then licked first one and the बोले इसको थोड़ा टेस्ट किया फिर इसको. This liturgy, so this भी बोल रखा है this liturgy, so this liturgy liturgy means कि like a customary ritual है, customary ritual है, okay. और ये often religious है, basically often means it means religious. So it means that expertly moving their head from side to side, they licked first one and then other. This liturgy of doing this seemed customary ritual, religious type का कुछ लग रहा है to me, sumptuously enviable. Enviable. Sumptuously means in a way that suggested a great expense of luxury. Sumptuous बोल सकते हैं हम लोग, luxury से मतलब है कोई luxury. Okay. Enviable means stubborn. Okay. Enviable means I like to like envy it. Like envy का मतलब बोल सकते हैं कि desirable. Desirable. Enviable means desirable. Enviable means desirable to the author. Desirable. Okay. This literally seemed to me sumptuously enviable that many times I asked to be allowed to celebrate it in vain. In vain. Okay. My elders were inflexible. Inflexible means like stubborn. स्टबन है, मतलब कि अलाउ नहीं कर रहे हैं करने के लिए इसे, मतलब 2 सेंट वाली दो दिलवाने के लिए. 4 सेंट यस बट 2 सेंट्स एब्सोल्युटली नो, मतलब 2 सेंट वाली जब बोल रहे हैं तो वो मना कर दे रहे हैं. अब उसका उसमें कुछ कुछ बोल रखा है कि रीजन क्या है, नेक्स्ट हम रीजन देखने जा रहे हैं. यहाँ बेसिकली रीजन बता रखा होगा क्या क्यों मना कर रहे हैं. सो एज एनी वन कैन सी, ओके. सो बोल रखा है कि नाइदर मैथमेटिक्स और नाउ डायलेक्टिक्स. Dietetics means the branch of a knowledge concerned with diet and effects on health. So dietetics means so concerned with diet and its effects on health. डाइट क्या है and इसके effects क्या है हेल्थ पे. सो बोल रखा है कि एज एनीवन कैन सी नाइदर मैथमेटिक्स लाइक सेम प्राइस पड़ रहा है, नॉर द इकोनॉमी, ओके, नाइदर डायटेटिक्स justified this refusal, मतलब क्यों मना कर रहे हैं पता नहीं चला. Nor did hygiene assuming that in the due course the tips of the both cone were discarded. अब जो दोनों डिस्कार्ड कर सकता है वो तो ऑप्शन है उसके पास. So why were they not agreeing to the this. So the pathetic and obviously mendacious means not telling the truth, lying. Basically mendacious means lying, okay, not telling the truth, lying. Pathetic means very boring, bad. ठीक है. Obviously mendacious justification was that the boy concerned with turning his eyes from cone to cone. बोल रखा है कि बेकार से रीजन वो बता रहे हैं कि भाई आईज अगर फ्रॉम इफ यू मूव योर टर्निंग ओवर योर आईज फ्रॉम वन कोन टू अदर was more inclined to stumble means fall over stones or step on the cracks in the pavement. Pavement is the path, pavement means the path. तो वहां पे पत्थर आ सकता है, हम लोग मतलब गिर सकते हैं देख के नहीं, या फिर क्रैक हो सकता है पेडल में से पैर फंस सकता है. सो आई डिमली सेंस दैट देयर वाज अनदर सीक्रेट जस्टिफिकेशन. तो वो बोला था मे बी इसका कुछ सीक्रेट जस्टिफिकेशन है. क्लियरली pedagogical, but I was unable to grasp it. Pedagogical means related to profession of theory of teaching. Pedagogy means theory of teaching. Okay, so theory of teaching बोल सकते हैं. So कुछ उसका जस्टिफिकेशन है ऑथर बोल रहा है पर अब उसको समझ नहीं आ रहा उस समय पे. अब नेक्स्ट बोल रखा है कि टुडे, आज की जनरेशन में, अब ये करंट सिनेरियो बता रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे अभी तक जो देख रहा है कि क्या हुआ है ये समझ में आ रहा है. नेक्स्ट देखते हैं कि आज के बोल रहा है ऑथर. तो आज के समय में हो गया ना कि टुडे सिटीजन एंड विक्टिम ऑफ अ कंज्यूमर सोसाइटी. अब कंज्यूमर ऑफ अ विक्टिम ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी. सो कंज्यूमर सोसाइटी मीन्स सब कंज्यूमरिज्म है, जितना ज्यादा मतलब यूटिलाइजेशन ये सब हो रहा है. तो लिखा सिविलाइजेशन ऑफ एक्सेस एंड वेस्ट. सिविलाइजेशन है यहाँ पे मतलब काफी सारी चीजें हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट. सो विच द सोसाइटी थर्टीज वर नॉट. अभी 1930s की बात हो रही है पहले 4 पैराग्राफ में, तो तब ऐसा नहीं था.
अब वो रियलाइज कर रहा होता है कि आई रियलाइज दैट दोज डियर एंड नाउ डिपार्टेड एल्डर्स वर राइट। तो बता रहा कि जो एल्डर्स हैं वो मेरे राइट थे, जो कि अब नहीं है, पर वो सोच पा रहा है कि वो राइट थे। कैसे राइट थे? वो बोल रहा नेक्स्ट कि दो टू जो 2 सेंट वाला दो कोन थे, 2 सेंट वाले 2 कोन्स थे, इंस्टेड ऑफ 1 4 सेंट वाला कोन था, did not just signify squandering. Squandering means wasting. Squandering is squandering wasting. Squandering is wasting something in a reckless manner. Something usually money or time हम waste कर रहे हैं. Okay, wasting money or time बोल सकते हैं, money or time, public time. So the squandering, economically speaking, बोला कि both symbolically they surely did. So बोला कि 2 सेंट्स वाले जो कौन है इंस्टेड ऑफ 4, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते थे वेस्टिंग। सो अदर सिंग लाइक जो 2 सेंट वाला दो हमने लिए, तो वो सिग्निफाई नहीं कर रहा स्क्वांटरिंग मतलब वेस्टिंग इकोनॉमिकली, क्योंकि 4 सेंट उसमें ही पड़ रहे हैं, बट सिम्बॉलिकली वो लग रहा है कि मतलब वेस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज रिटन दैट इट वॉज फॉर दिस प्रिसाइज रीजन आई यार्न फ्रॉम देम। यार्न मीन्स लास्टिंग, लाइक lasting craving, lasting craving for them, because two ice creams suggested access. Okay, एंड दिस वॉज प्रिसाइडली वाई दे वर डिनाइड टू मी। वो बोला कि इसी कारण से उसने डिनाई किया था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब मना करते थे, बिकॉज दे लुक्ड इनडिसेंट एंड इंसल्ट टू पॉवर्टी एंड डिस्प्ले द फिक्शियस वेल्थ प्रिविलेज एंड अ बोस्ट वेल्थ। बोला कि अगर दो ले रखे हैं तो हम लोगों ने मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जो है अपने पास लग्जरी है, प्रिविलेज है, फिक्शियस प्रिविलेज है, बल हम पैसे दिखाने के हम दो ले सकते हैं, भी बेसिकली बोस्टिंग ऑफ वेल्थ है, बोस्टिंग ऑफ वेल्थ ये रीजन बताया जा रहा है। ठीक है, तो बोला कि नेक्स्ट क्या हो रहा है कि इन ओनली स्पॉइल्ड चिल्ड्रन ईट टू कोन्स एट वंस एंड दोज चिल्ड्रन हु इन फेरी टेल्स वर राइटली पनिश्ड एज पिनोकियो व्हेन ही रेटेड द स्किन एंड द स्टॉक। सो बेसिकली दो चिल्ड्रन जो हैं स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, ये ऐसे लिखाते थे, एंड दो चिल्ड्रन हु वर इन फेरी टेल्स वर राइटली पनिश्ड। लिखा, अब आगे बोल रखा है एंड पेरेंट्स हु इनकरेज दिस वीकनेस appropriated too little Pervenious, pervinous means people who have recently gained wealth but lack social grace associated with new money. Pervinous means like new money were bringing up to their children in the foolish theater of I'd like to but I can't. So next बोल रखा है कि they were preparing them to turn up at a tourist class check-in with a fake Gucci bag from a state pillar on the beach of जेमिनी। तो ये बोल रखा है कि मतलब वो असल में वेल्दी नहीं है, पर वो बस दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि वी दे आर वेल्दी। वो ऐसा ही है कि मतलब वो अपने बच्चों को भेजते हैं टूरिस्ट क्लासेस चेक इन करने के लिए, एक बैग उनके पास फेक बैग है गुची का, वो कहीं से खरीद रखा है बाहर से, कोई मतलब स्ट्रीट पेल्डर मतलब की स्ट्रीट कोई शॉप से खरीद रखा है। नेक्स्ट इट इज रिटन दैट नाउ डेज द मोरलिस्ट रिस्क सीम्स एट ऑड्स विद मोरालिटी। सब बोल रखा है कि तो जो आजकल का कल्चर है वो, तो बोल रखे कि मोरलिस्ट जो है, मोरलिस्ट मीन्स कि समवन जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग के बारे में जो बता रहा है, वो ऑड है विद मोरालिटी। ओके, मोरालिटी में जो होना चाहिए उससे ऑड है, अलग है। इन अ वर्ल्ड वेयर द कंज्यूमर सिविलाइजेशन नॉन वांट्स इवन एडल्ट्स टू बी स्पॉइल्ड। अब कंज्यूमर जो सिविलाइजेशन है, अभी बेसिकली ऑथर जो है क्रिटिक कर रहा है, क्रिटिक कर रहा है ये मॉडर्न वर्ल्ड को, कि हो क्या रहा है कि इसमें जो कंज्यूमर सिविलाइजेशन है, नाउ वांट्स इवन एडल्ट्स टू बी स्पॉइल्ड, एडल्ट्स भी स्पॉइल हो रहे हैं। ठीक है, एंड प्रोमिसेस देम टू बी देम ऑलवेज समथिंग मोर, from the wristwatch in the box of a detergent to bogus bangle sheathered sheeted with a magazine in the companies in a plastic envelope। बेसिकली हो क्या रहा है कि मतलब एक के साथ एक फ्री ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अब सो अब नेक्स्ट लिखा है लाइक द पेरेंट्स ऑफ दोस एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो कि दोनों हाथ से काम कर सकता है, एम्बीडेक्स्ट्रस कैन वर्क विद बोथ हैंड्स एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, फिर नेक्स्ट लिखा है कि ग्लूटेन्स स्वाइन वीड consumer civilization pretends to give more but actually gives for 4 cents, which is
वर्थ 4 सेंट्स। अब बोल रखा है कि सिविलाइजेशन ने इसे बोल लिया कि मतलब कि बाय वन, लाइक बाय वन और गेट वन है, पर एक्चुअली वो पैसे ऐसे मान लो 4 सेंट्स का प्राइस इसमें बोल रखा है। तब वी फील एज इफ कि ये मतलब इसके साथ फ्री मिल रहा है तो मे बी, पर असल में इसकी ओरिजिनल प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस भी 4 सेंट्स ही है, अगर वो इतने के दे रहे हैं। बस दिख रहा है कि ज्यादा मिल रहा है पर हो नहीं रहा, ठीक है। तो you will throw away with the old transistor radio to purchase the new one। अब बोल रखा है ओल्ड ट्रांजिस्टर रेडियो आप थ्रो कर देते हो आजकल नए खरीदने के लिए। दैट बूस्ट एन अलार्म क्लॉक एज वेल। अब इसमें अलार्म क्लॉक आ गई, बट सम इनएक्सप्लिकेबल डिफेक्ट इन द मैकेनिज्म विल गारंटी दैट द रेडियो लास्ट ओनली 1 ईयर। अब ऐसा कुछ है उसमें कि मतलब अनेबल टू एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेबल, inexplicable means unable to explain, explained, not explained, और अकाउंटेड फॉर, मतलब अकाउंटेड फॉर, अकाउंट हम नहीं कर पा रहे पर वो खराब हो जाएगा जल्दी, बोला है कि 1 साल ही चलेगा जो नया रेडियो हम लाए हैं। द न्यू चीप कार विल हैव लेदर सीट्स, double sided mirror adjustable from the inside and parallel dashboard, but it will not last really so long as the glorious old Fiat 500, which even when it broke down could be started with a kick। बोल रखा है कि मतलब जो नया बेसिकली नया कंज्यूमर सामान आ रहा है अच्छा नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग है। हम लोग को एक्स्ट्रावेगेंट फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, पर वो ऐसा है नहीं ओरिजिनली। जितने का कॉस्ट है, मतलब जो कॉस्ट पड़ रही उससे उतना ही हम पे कर रहे हैं। द मोरालिटी ऑफ दोस ओल्ड डेज, द मोरालिटी ऑफ ओल्ड डेज, पुराने दिन थे उसे मोरालिटी बोलती है। अब ये यहाँ पे बदल गया है, ये मोरालिटी कुछ और है यहाँ पे, और जो हम लोग राइट रॉन्ग की डेफिनेशन बता रहे हैं कुछ और है। पर ओल्ड डेज, मोरालिटी ऑफ द ओल्ड डेज मेड स्पार्टन्स ऑफ असॉल। स्पार्टन मीन्स स्पार्टन्स, एक यहाँ पे टर्म आया है स्पार्टन्स, और एक टर्म आया है यहाँ पे कि साइबराइट्स। विद दो वर्ड्स की मीनिंग क्या है कि स्पार्टन्स बेसिकली सिटीजन्स थे एंशियंट ग्रीक के, जो रहते थे इन द सिटी ऑफ स्पार्टा। वो फेमस थे बेसिकली, डिसिप्लिन्ड थे, डिसिप्लिन्ड थे, ब्रेव थे, ओके, एंड ऑस्टायर थे। ऑस्टायर मीन्स basically lived without luxury। एंड हम लोग को मोरालिटी बता रही ओल्ड डेज की, मेड स्पार्टन्स ऑफ ऑल ऑफ अस, मतलब ऐसे थे, अपना बिहेवियर ऐसा था। बट वाइल टुडेज मोरालिटी वांट ऑल अस टू बी साइबराइट्स। अब आजकल हुए ऐसे क्या तो ऐसे हो गए, कैसे लगा। अब ये है इनहेबिटेंट्स कहे के, साइबरीज के, साइबरिस के, ठीक है। एंड एंशियंट सिटी फेमस फॉर द एक्सट्रीम लग्जरी बेसिकली, एंड प्लेजर सीकिंग, मतलब बिहेवियर की तरफ हम लोग आ गए हैं, सीकिंग बिहेवियर की तरफ हम आ गए। बेसिकली पैराग्राफ ये कंप्लीट समरी है पैसेज की। सो बेसिकली बोला कि कैसे इसने, मतलब कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं कि चाइल्डहुड में जो ये होता था तो उसको आजकल की मोरालिटी से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे बदल रहा है, और कैसे हम लोग बेसिकली लग्जरी कैसे मतलब प्रिटेंड लोग कर रहे हैं, ये सब बोल रखा है पैराग्राफ में। सो ये वीडियो यहीं तक है। सो thank you for watching. Like and subscribe my channel. We will meet again in a new video with some new paragraph that we will try to summarize in a very basic form. Thank you.